The Instruments of the Spirit, Synthesis of Yoga, Chapter 5. Moreover, moreover, it is a total purification of all the complex instrumentality in all the parts of each instrument that is demanded of us by the integral perfection. It is not ultimately the narrower moral purification of the ethical nature. Ethics deals only with the desire soul and the active outward dynamical part of our being. Its field is confined to character and action. It prohibits and inhibits certain actions, certain desires, impulses, propensities. It inculcates certain qualities in the act, such as truthfulness, love, charity, compassion, chastity. When it has got this done and assured a piece of virtue, the possession of a purified will, and blameless habit of action, its work is finished. But the Siddha of the integral perfection has to dwell in a larger plane of the spirit's eternal purity beyond good and evil. By this phrase, it is not meant as the rash, hastily concluding intellect would be prone to imagine that he will do good and evil indifferently and declare that to the spirit there is no difference between them, which would be in the plane of individual action, an obvious untruth, and might serve to cover a reckless self indulgence of the imperfect human nature. Neither is it meant that since good and evil are in this world inextricably entangled together, like pain and pleasure, a proposition which, however true at the moment and plausible as a generalization, need not be true of the human being's greater spiritual evolution. The liberated man will live in the spirit and stand back from the mechanical, continued workings of a necessarily imperfect nature. This, should I continue? This, however possible, as a stage towards a final cessation of all activity, is evidently not a counsel of active perfection, but it is meant that the Siddha of the active integral perfection will live dynamically in the working of the transcendent power of the Divine Spirit as a universal will through the supermind individualized in Him for action. His work will therefore be the works of an eternal knowledge, an integral, an eternal truth, an eternal might, an eternal love, an eternal ananda. But the truth, knowledge, force, love, delight will be the whole essential spirit of whatever work he will do and will not depend on its form. They will determine his action from the spirit within, and the action will not determine the spirit or it subject it to a fixed standard or rigid mold of working.
तो एथिक्स तो तभी पिक्चर में आते हैं ना जब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो, है ना? तो ये द व्हाट ही इज शेयरिंग हियर, एथिक्स डील ओनली विद द डिजायर सोल। चाहिए 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 चाहिए, है ना? वहां पे एथिक को बीच में लाना पड़ता है कि इतना चाहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? एथिकल नहीं है किसी को परेशान करना। So this total purification of all the complex instrumentality in all parts of each instrument that is demanded of us by the integral perfection. It is not ultimately the narrower moral purification of ethical nature. मतलब good और bad तक सीमित नहीं है ना, लेकिन पहले तो हमारे लिए I think later on he says that it is a necessary stage. So though required, but we can't just stagnate there, है ना? Ethics deals only with the desire soul, an active outward dynamical part of our being. Its field is confined to character and action. It prohibits and inhibits, जैसे डूज एंड डोंट्स हो गए, है ना, अपने अपने कल्चर्स के, रिलीजन्स के. इट प्रोहिबिट्स एंड इनहिबिट्स सर्टेन एक्शंस, certain desires, impulses, propensities. It inculcates certain qualities in the act, such as truthfulness, love, charity, compassion, chastity. When it has got this done and assured a base of virtue, आई थिंक ये वो वाली बात होगी जैसे एक जो जहाँ राम राम जी के युग वाली बात करते हैं ना, तो वो युग है ना, जैसे जरूरी था वो वाला युग टू हैव दैट बेस ऑफ वर्च्यू, जहाँ पे राक्षस ही राक्षस हैं. So when it has got then this done and assured a base of virtue, the possession of a purified will and blameless habit of action, its work is finished. अब आता है कृष्ण वाला युग. ऐसा लग रहा है ना, बियॉन्ड गुड एंड एविल बट द सिद्धा ऑफ इंटेग्रल परफेक्शन. हाँ हाँ बोलो. नहीं, मुझे एक्चुअली बोलना नहीं है, बट पूछना है. मतलब अगेन इट अपीयर्स लाइक अ लैडर, राइट? दैट वी मोस्टली थिंक दैट प्योरिफिकेशन और राइचियसनेस जस्ट मीन्स कि एथिकली वर्ल्ड के हिसाब से जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, यू आर जस्ट फॉलोइंग दो इन जनरल, है ना? एक जैसे अब सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन है ना, और हल्का सा हाँ, जैसे अब डिसिप्लिन है, ऑर्डर है. सती अगर चल रही है, सती हाँ. मूवमेंट इफ इट्स ऑन, हम्म. प्रैक्टिसिंग सती इज एथिकल, नॉट प्रैक्टिसिंग इट माइट नॉट ट्रू ट्रू. बी. तो उसमें वो नहीं है ना, हम्म. डिसर्नमेंट नहीं नहीं है, हाँ. मुझे लगता बस. है वो जो एनिमलिस्टिक मैन है ना, हाँ, उसके लिए वो जरूरी है ना, एक या ऑर्डर. या हाँ. बट अ कि मैन हु इज आँख बियॉन्ड बंद दैट. करके. हाँ हाँ हाँ. हाँ, बस मान लो या आंख बंद करके, या. हाँ, तो वो हम लोगों का बहुत रेवर्ड. ही इज एन एथिकल मैन, ही इज वेल रिस्पेक्टेड. हम्म. Yesterday, I was attending something. There were about 40 girls, ladies, and the person who was taking it, na, she again and again kept saying that I get so much love and respect from you guys. I get, matlab, she was so bouncing in that joy कि everybody looks up to me. तो वो अपने में इतना वो लग रहा था कि अरे डोंट डिपेंड ऑन देम फॉर योर रिस्पेक्ट, राइट? एंड फॉर हर, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट थिंग, शी इज ब्रिंगिंग दोस पीपल टुगेदर एंड लव. एंड येट ये जो भाई, ये जो एथिक्स और उसके लिए रिस्पेक्ट, कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, नाउ रिस्पेक्ट मी, वो एक इट कंज्यूम्स यू, है ना? मतलब दैट जस्ट केम टू मी. तो यहाँ पे एक ब्लेमलेस एक्शन आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन. हम्म. ये सारी एक्शंस वो करोगे जिसमें ब्लेम नहीं मिल सकता. व्हाट वाज है बेस ऑफ वर्च्यू, जस्ट अ सेकेंड. पोजीशन ऑफ प्योरिफाइड विल एंड ब्लेमलेस हैबिट ऑफ एक्शन. हम्म. हाँ, आई थिंक यही होगा. हाँ, वही जो आप बता रहे हो ना, क्योंकि मतलब मान लो मैं सती फॉलो नहीं कर रही तो आई विल बी ब्लेम्ड, हम्म, है ना, आई विल बी नेम्ड एज अ या विच और या वॉट एवर. या
है ना? Yeah. तो एक कुछ बिरादरी के लिए और कुछ समय के लिए वो जरूरी होता है ना? Yeah. एंड अगेन देयर हैव बीन पीपल जो उसी टाइम में भी रह के उन्होंने वो फॉलो नहीं किया बिकॉज दे कुड देख, नॉट डू इट, है ना? दे कुड yeah. नॉट फॉलो इट। हाँ. हाँ। देखो इधर भी it prohibits and inhibits certain action हम्म desire. So it's not saying right action, हम्म right decision. है ना, हम्म बस है तो है, बोल दिया तो बोल दिया, है ना, हम्म। that तो एक वो हो वही. गया कि क्योंकि एक वाइल्डनेस है ना? एनिमल इंस्टिंक्ट्स की वाइल्डनेस है, तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर चाहिए ना, तो कुछ भी ऑर्डर बना दो, है ना? Yeah. उस समय के हिसाब से कुछ भी ऑर्डर बन गया, अब उसको फॉलो करना है। Hmm. Yeah. हम्म, The society was created, like I remember my father telling me when I asked him, ये है क्यों rules, ये क्यों करना पड़ता है. This is what he had said कि because अगर नहीं करें तो everything will go haywire. So just to give, if people are living together, it is structure. Their norms are established. But the sad part is कि we just think कि this is it, है ना मेरा, until you start picking and saying, but yeah. बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर जैसे सच तो सब बोलें कि भाई अगर मतलब यू लिसन टू योर कॉमन सेंस, है ना? द हाईएस्ट पॉसिबल सेंस इन यू, एंड यू, जब अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कब क्रॉस करना है कब नहीं करना है ना? लेकिन Mm, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वी आर ऑल बाइज्ड। जिसको जल्दी mm, है वो बोलेगा नहीं मुझे जल्दी है, मेरा काम जरूरी है ना? तो मेरा वाला mm, ज्यादा खुला होना चाहिए। तो क्योंकि हम वहां पे mm. नहीं है तो फिर द रेगुलेशन इज देयर, नहीं तो सब अपने मन की करेंगे, Yeah. बुरी हालत हो जाएगी। You know, when I had moved to Gurgaon, हम्म। the discipline of traffic अभी भी है काफी हद तक, in between Delhi and Gurgaon is very different. डिफरेंट है, हाँ हाँ। So I had gone to a shop and there, जैसे होता है ना रेड लाइट के आगे कोई बंद हो गया कोई हम्म जगह, तो द गाय मस्ट बी यूज्ड टू गोइंग राइट, हम्म एक स्ट्रेट, उसके लिए खुला था बट वो बंद कर दिया. हम्म तो ही वुड गो ऑपोजिट इतनी मेन रोड पे सेइंग कि मेरा सड़क है, ये किसने बंद कर दिया, मैं बिल्कुल क्यों मानूं. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब राइट, तो इट वाज वेरी हम्म, इंटरेस्टिंग, रियली ही सेड हाँ हाँ. हाँ हाँ हाँ। तो या, दैट फील्स राइट कि हाँ ये, व्हाई शुड आई फॉलो दिस हाँ बिकॉज हाँ। इट्स आई माइन थिंक वो और. वाइल्डनेस है ना उसमें भी एक, है ना? मतलब इट्स लाइक एनिमलिस्टिक या. इम्पल्स, है या. ना? कि नहीं मुझे तो जाना है ना? इम्पल्स हो गई, हाँ. रीजन नहीं हाँ. यूज हुआ, है ना? रीजन नहीं. हाँ. हाँ। और उस इम्पल्स को जस्टिफाई करने के लिए द रीजन कैन बी यूज्ड। तो इम्पल्स इज मोर पावरफुल, रीजन हैज अ सेकंड हैंड हियर, है ना? एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजन वी यूजेस, अरे 20 साल से कर रहे हैं. हाँ 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 हाँ। हम्म, कि हमारा घर है, हमारा एरिया है, हाँ. हाँ. करेंगे। हाँ. ट्रू ट्रू। हम्म, हाँ, अब चलते हैं कृष्णा पे. ए, yeah, okay. When it has got this done and assured a base of virtue, the possession of a purified will and blameless habit of action, its work is finished. But the Siddha of integral perfection has to dwell in a larger plane of the spirit's eternal purity beyond good and evil. By this phrase, it is not meant as the rash, hastily concluding intellect would be prone to imagine that he will do good and evil indifferently, है ना? कि हम जैसे बोलने लग जाते हैं, है ना, कि की फर्क पैंदा, है ना? जब गुड और बियॉन्ड के परे ही है तो गुड भी ठीक है, इविल भी ठीक है ना? हम्म, तो गलत हमारी डायरेक्शन हो जाती है। रैश हेस्टिली कंक्लूडिंग इंटेलेक्ट would be prone to imagine that he will do good and evil indifferently, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे गुड में इन्वॉल्व हो इविल में इन्वॉल्व हो, and declare that to spirit there is no difference between them, which would be in the plane of individual action an obvious untruth and might serve to cover a reckless self-indulgence of imperfect human nature. This is so common, this is so common, है ना? मतलब स्पेशली ये जो जैसे तरह तरह के कल्ट्स डेवलप हो जाते हैं ना, एंड दे अलाउ एवरीथिंग इन द नेम ऑफ बीइंग एफर्टलेस,
There is no purpose to life. Relax, easy. And in that you can just indulge yourself in everything. And ये नहीं पता लगता कि नो पर्पस से पहले एक्चुअली पर्पसफुल होना बहुत जरूरी है ना। वो जो नो पर्पस है वो उसका नो पर्पस है, कह सकते हैं, है ना। बट हमारे लिए तो पर्पस चाहिए जिस स्टेज पे हम हैं। या एंड आई थिंक दैट्स व्हाई, जैसे ओशो वाला भी बताते हैं ना, जैसे ओशो की बिरादरी, मतलब सच गुड वर्ड्स, इफ इवन इफ वी रीड नाउ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म, इतना सुंदर बोला हुआ है। एक ओंकार सतनाम पे जो बुक है, हम्म, खलील गिब्रान पे जो बुक है, इतनी मोटी टिप्पणी खलील गिब्रान, इतनी सी खलील गिब्रान की बुक और इतनी मोटी टिप्पणी उसकी, हाँ। लेकिन वही चक्कर है कि हमको जो जो उठाना है बस वो उठा लिया और बाकी छोड़ दिया हमने। हम वो हैं जैसे कबीर कहते हैं ना, साधु वैसा थी जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई लय, थोता दे उड़ाए। हम थोता पकड़ लेते हैं, है ना, और सार उड़ा देते हैं हम। एंड देन वी से कि भाई ये तो ओशो ने कहा था। हम्म, एंड हाउ इनफेमस ओशो बिकेम बिकॉज ऑफ दिस, है ना, कि लोगों ने वो उठा लिया जो एक्चुअली में मतलब विदाउट प्यूरिफिकेशन नहीं था ठीक उनके लिए उठाना। हाउ इट बिकेम लाइक a cult and all kinds of practices in the name of spirituality. बट इसमें एक और एंगल है कि यहाँ यूएस में Hmm. he had come to the US, right? Like taken up huge lands and stuff. And the things that were happening were very weird. मतलब what they were doing inside and stuff. तो Hmm. वही जो कल्टिश आप कहते थे, Hmm. एक तो बोला Hmm. that's beautiful, we don't remember, but the end ना Hmm. was very strange. मतलब the हाँ way हाँ, it had its downfall. या उससे बिल्कुल। भी ना a देखो lot अब of ये अच्छा है, मतलब हाँ अगर इस डायरेक्शन हाँ को तुमने पकड़ लिया तो अच्छा है कि हाँ डाउनफॉल हो। हाँ लेकिन हाँ उसको हम तब भी हाँ ओशो का डाउनफॉल नहीं कह सकते, हाँ उसको उस yeah, बिरादरी का डाउनफॉल कह सकते हैं जिन्होंने हम्म, थोथा पकड़ लिया। क्योंकि ओशो की बुक्स तो हम्म, अभी तक हम पढ़ते हैं, मतलब हाँ आई हैव स्टिल एट माई प्लेस, मतलब सम ऑफ देम आई हैव गिवन अवे बट सम आई कुड नॉट जस्ट गिव अवे, बिकॉज हम्म, देयर इज ट्रुथ इन दोज वर्ड्स। अब वो किस हम्म, डायरेक्शन में क्या ले गए किसी को भी, और है तो, yeah. मुझे लगता है नहीं, तो हम, my understanding that he was still there when all this was नो ही वाज happening. देयर, बट वही है ना कि मतलब वो हाँ इतना कंट्रोल हाँ नहीं हो पाता है व्हेन इट्स सो हाँ एक्सपेंडेड ना। yeah, true true मतलब true उसने true क्या बोला और वो 5 लेयर के बाद क्या तुमने कम्युनिकेट किया उसके भक्तजनों ने, मतलब इट्स वेरी हार्ड true yeah, रियली। अब जैसे इवन हियर वी टॉक अबाउट, है ना, मतलब एपी की बात करते हैं जब, तो अब वो कितने mm, लेवल से वो झड़ झड़ के आ रहा है और तुम्हारे पास क्या पहुंच रहा है नहीं पता तुम्हें। yeah वी डोंट नो हु ओशो वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, वी डोंट नो। yeah yeah या एंड बाबा वो शेयरिंग के पहले तो उनको रेवर करके यूएस बुलाया, कम गिव अस लाइफ टाइप. Then when all this was happening and everybody, so then their visas were taken, they were threatened कि either they will go to jail or just leave, they were. तो उससे एक when बुलाया तो everybody was like wow, he must be so good, like इंडिया की बात कर रही हूँ. और जब वापस then it was like अरे he was good for नहीं nothing, वो like how हम ना early देखो we ना, are to judge. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने इम्प्यूरिफाइड बीइंग्स हैं हम कि हमको तो डिसिप्लिन ही चाहिए, पिटाई ही चाहिए। मतलब हमको जहां पे भी थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है वहां पे लाइसेंशियसनेस आ ही जाती है, और वो जो ये कह रहे हैं ना, कवर फॉर इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर, वो बन जाता है। स्पिरिचुअल गार्ब ओढ़ लिया उसको कि भाई ये तो हम तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, है ना, ही अलाउज एवरीथिंग, ही इज अवर भगवान। सो, है ना, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू आर हैविंग अ कवर फॉर योर डिजायर्स, तो वो तो किसी को भी ले डूबे, अच्छा है वो तो ले डूबे। तो ये जो इतने स्कैंडल्स भी होते हैं सॉर्ट ऑफ टाइम विद हम्म। गुरु गाइज एंड ऑल, लाइक हम्म। व्हाटएवर दे आर कॉल्ड, उसमें फिर एक फॉल्स परसेप्शन ये हो जाती होगी ना कि सारी वननेस है, हम्म। तो फिर मैं जो मर्जी करूं जिसके साथ, हम्म। तो अब हाँ यही तो मतलब देखो ना, ये मतलब क्या. तभी तो जसुरमा कहती है कि मतलब यू कैन नेवर लाइक रिलैक्स, ओ मेरा हो गया, है ना, दैट हम्म, अवेयरनेस हैज ऑलवेज टू बी अलर्ट। मतलब हम्म, हम्म, जब तक पिंजर में सांस, जैसे ही आप रिलैक्स्ड हुए ईगो जंप्स बैक। यू मे हम्म, हैव ऑल द सिद्धीज, ऐसा नहीं सिद्धीज नहीं होंगी आपके पास। हम्म, वही लोगों को फूल करती है, क्योंकि लोगों को सिद्धीज, अब देखो मदर श्री अरबिंदो के पास क्या हमको लगता है सिद्धीज नहीं थी, है ना, बट हम्म, दे नेवर मेड इट अ शो हम्म, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये जैसे मतलब अब मान लो मेरे में सिद्धि है, तो लोग मेरे को ब्लाइंडली ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें, है ना, कि भाई तुम में तो ये हम्म, पावर है, तुम में तो वो पावर है।
और ईगो तो किसी भी समय आ सकती है। और जब अगर तुम किसी गुरु के पास इसलिए जा रहे हो कि वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ऑर्डिनरी लग रहा है, बट यू नो कुछ है उसमें, कोई सिद्धि नहीं दिख रही तुमको उसमें, बट कुछ है जो तुम्हें उसकी तरफ खींच रहा है, तो वो शायद एक ट्रू कनेक्शन फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अब किसी की तरफ अट्रैक्ट होके सिद्धियों के लिए आप जा रहे हो, है ना, तो वो तो डेंजरस खेल है। तभी तो इतने फंसते हैं, इतने लोग फंस जाते हैं इसमें। और स्पेशली जिसमें तादाद ज्यादा होती है, लाइक करोड़ों, है ना, ज्यादा की संख्या फॉलो कर रही है, क्योंकि उनको वहां पे कुछ दिखता है ना, कुछ है। एंड ये जो साईं बाबा हम्म है ना, ही वाज बोथ, ये हम्म मिरेकल्स भी थे, सिद्धि भी थी, हम्म। और सिंप्लिसिटी भी थी, और स्पिरिचुअलिटी, मतलब इट अपीयर्स कि ये भी होता साईं है, बाबा, अलग या पर्पस होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंट और मुझे काइंड लगता ऑफ। है समय समय के हिसाब से भी है ना। या और हाँ। साईं बाबा का तो ये बताते हैं कि अभी तक लोग, इतने लोगों ने चैनल, मतलब आई डोंट नो अबाउट द परफेक्ट चैनलिंग और नॉट, बट पीपल से दैट they kind of get in touch with that consciousness of साईं बाबा। प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है, हम तो इम्प्योरिटी में किसी चीज को भी गंदा कर देते हैं। ऐसा नहीं है हर चीज ही गुरु होती है वैसे तो, बट हम हर चीज में ही अपनी पॉइजन घुसेड़ देते हैं ना। सॉरी, पार्डन मी। नॉट टुडे। हाउ इज दैट? यस, गुड। Okay, by this phrase, it is not meant as the rash, hastily concluding intellect would be prone to imagine that he will do good and evil indifferently and declare that to the spirit there is no difference between them, which would be in the plane of individual action, an obvious untruth, and might serve to cover a reckless self indulgence of imperfect human nature. Very important for us. एंड मदर सेज, है ना, मदर कहती है कि कुछ अबाउट समथिंग अबाउट रीजन, है ना, कि यू हैव टू एक्चुअली विद डिसिप्लिन फॉलो रीजन। मतलब हम जिस स्टेट पे हैं उसके लिए यू कांट थिंक दैट यू आर अबव रीजन एंड बियॉन्ड रीजन। So she says to scrupulously follow reason before you can drop it. मतलब अब जैसे रूल्स बने हुए हैं कि अच्छा 9 बजे लाइट्स बंद, आश्रम का रूल है ना, तो बस बंद, मतलब उसके बाद आपने कुछ, यू हैव टू फॉलो दैट। सुबह 6 बजे उठना है सबने, तो हाँ उठना है। 12 से 1 खाना है, तो 12 से 1 ही है, मतलब डेढ़ नहीं है। सो इट हेल्प्स अस टू, अभी जो हम प्यूरिफिकेशन ऑफ विल की बात कर रहे थे ना, मतलब उसमें विल ही तो स्ट्रेंथन हो रही है कि आई हैव टू गेट अप इफ आई वांट टू हैव लंच, दिस इज द टाइम, दिस इज द रूल दैट आई हैव टू फॉलो। एंड इट हेल्प्स फॉर्म अ इंडिविजुअलिटी, जो हम बात करते हैं ना। अदरवाइज तो कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं ना, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है लाइफ में, तो इट हेल्प्स टू कार्व आउट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअलिटी, लाइक दिस इज मी, है ना वो। एक ये भी इंटरेस्टिंग है कि मोर ऑफन देन नॉट, लाइक से आफ्टर 9, समझ लो फॉर एग्जांपल, व्हेन द डेली chores are done, what you were talking about the other day, na, that as soon as we relax, हम्म then हम्म start things that हम्म, don't need to be started. बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ही curtail कर दो, obviously there would be people who would not हाँ sleep, हाँ हाँ। पिछली और बिंदु मदर भी पता नहीं कितने कितने बजे सोती थी, उनकी तो, है ना, हम्म what we read कि there were some sessions happening late night, हम्म तो हम्म everything has space, but for overall, हम्म, so that वहाँ खुले ही ना, है ना, वो ओपनिंग ही ना हो जहाँ पे बिल्कुल। पोटेंशियल हो, जस्ट स्लीप। अब इधर भी यही कहते हैं, मतलब आश्रम में हम लाइट्स कितने बजे, 9:30 10 ऑफ है ना, 9:30 आई थिंक। लेकिन अब पीपल हैव फोन्स, उसको तो नहीं रोका जा सकता। बट ये है कि थैंकफुली वो एरिया ऐसा है कि वहां पे ज्यादा कनेक्शन ही नहीं। तो करोगे तो कितना करोगे। And then the other thing is that if you sleep too late, then in the morning there is a mandatory activity for everyone, which you won't be part of. तो वो allowed नहीं है. If you are living in the ashram,
है ना, eating the meals there, you are a resident there, then everyone irrespective of their age has to be up at this time and spend time in श्रमदान या जो भी है ना। तो फिर लेट सोओगे तो जल्दी तो उठना ही है, मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। और इफ नोबडी, इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग द रूल देन ही इज आउट, किक्ड आउट, है ना। चेस्टिटी का क्या मतलब होता है? लॉयल्टी? हाँ मतलब बेसिकली चैस्टिटी तो उसके लिए करते हैं कि जैसे यू डोंट sleep with somebody outside your thing. So in the ओ, sense, yeah, so there are chastity belts and all. Like in olden times, you would actually make such metallic things with locks. हम्म, And so those are called रियली? chastity belts. ओ माय Even if गॉड, you want to, you can't imagine that. माय Like, गॉड, like a yeah, undergarment with locks and माय stuff. गॉड। आई थिंक वो बुद्धिज्म में सेक्सुअल एथिकल कंडक्ट, एथिकल सेक्सुअल हाँ कंडक्ट की बात होती तो वो ये हाँ हो गया, है ना। हाँ। हाँ, हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ वो प्रीसेप्ट्स, है ना। देखो इसमें तो ये बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यू डोंट डू दिस 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 दिस, है ना, हम्म, तो वो तो ये तो और भी हम्म, उसमें तो फिर भी एक वो है, डिसर्नमेंट है जो तुम्हारी खुद की है। हम्म, बोथ शुड बी विलिंग, हम्म, बोथ शुड बी दिस, है ना, हम्म, उसमें देयर इज अ ओपननेस, दिस हम्म, इज मोर हम्म। ठक 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 हाँ, टाइप। या, interesting what all we do. बट मे बी देयर इज सम अदर वर्ड ऑल्सो, तो मेरी लिमिटेड थिंकिंग भी हो सकती है नॉलेज। Mm-hmm. The state of practice of refraining and from extramarital or specially from all the sexual intercourse, vows of chastity Mm, mm, and chastity belt, हाँ यही दिया हमने। mm. Interesting. तो ये सारे जो हैं, इफ यू रिमेम्बर, ये उसमें बुद्धिस्ट प्रिसेप्ट्स भी हैं। रिमेम्बर जत्सुन्मा हैड टॉक्ड अबाउट दीज एथिकल कंडक्ट्स, हम्म ट्रूथफुलनेस, लव, हम्म चैरिटी, जेनरोसिटी, है ना, हम्म कंपैशन, एंड ये एथिकल सेक्सुअल कंडक्ट में हम्म आता है हम्म चेस्टिटी। हम्म ओके। Neither is it meant that since good and evil are in this world inextricably entangled together, like pain and pleasure, a proposition which, however true at the moment and plausible as a generalization, need not be true of the human being's greater spiritual evolution. Yes. Yeah. The liberated man will live in the spirit and stand back from the mechanical continued workings of a necessarily imperfect nature. Hmm. जैसे हम कहते हैं ना कि सुख के साथ तो दुख entangled है। अभी सुख आया तो दुख आया ही, आना ही आना है ना। तो आई फील व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर इज दैट व्हेन वी लिव इन द स्पिरिट, जीवन मुक्ता की जैसे बात करते हैं ना श्री अरबिंदो, the liberated man will live in the spirit and stand back from the mechanical continued workings of a necessarily imperfect nature. तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर तू बड़े दिन से तेरा सुख चल रहा है तो अब देखना दुख भी पीछे ही है, कहा जा सकता है ना इन जनरल, इफ अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल cheerfulness is going on. But for a liberated man this is not true, because he is in that joy which is beyond the sukh and dukh, है ना। तो ये जो अभी इन्होंने बोला, thus neither is it meant that since good and evil are in this world entangled together like pain and pleasure, a proposition which, however true at the moment and plausible as a generalization, need not be true of human beings' greater spiritual evolution. उसके लिए ये वैलिड नहीं है कि evil and good are entangled, है ना। There can be a state which grows in delight, है ना, वो सुख दुख का आना जाना बंद हो गया, मतलब उसकी जरूरत नहीं है कि अगर भाई सुख है तो अब डरना पड़ेगा कि दुख भी आएगा, है ना। So need not be true of human beings' greater spiritual evolution. So once we go ahead in growth of consciousness, the liberated man will live in the spirit and stand back
from the mechanical continued workings of a necessarily imperfect nature. अब दुख के आने की जरूरत नहीं है ना, अब evil के entangle होने की जरूरत नहीं है, because he is standing back from the imperfect nature. हमारे लिए तो सुख दुख इसलिए बैक टू बैक आता रहता है क्योंकि हम बार बार इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, है ना, इंटेंगलमेंट फिर से हो जाता है. वो जो लास्ट टाइम ब्रीफली एक ये हुआ था कि I mean it's a not wrong word but like hate the sin not the sinner. हम हमेशा सिनर पे पहुंच जाते हैं, है ना, स्टोरी लाइंस में घुस जाते हैं, और फिर आई थिंक इट वाज अगेन रमना महर्षि which who said that when there is not a doer there will be no sufferer, ना समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे ना वे यही बोला हुआ है ना, काइंड ऑफ कि हाँ, आई थिंक मैकेनिकल कंटिन्यूटी तो उसी से आ रही है ना, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मेरा ये मेरा वो. इवन आई थिंक जब जेट्सुनमला डिड दैट होल व्हील ऑफ लाइफ जो उनकी पूरी सीरीज है, उसमें भी यही था कि इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द व्हील then my doership has to be removed. Okay. Or I guess Krishna when he did that वहां पे कुरुक्षेत्र में to Arjun, that's what he said, right? You're not the doer. I am killing, I am saving, I am giving birth. So you don't think you are killing anybody. है ना, मतलब वही. Yeah. आई थिंक वही है ना कि अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझाए तो इसको बहुत गलत तरीके से यूज किया जा सकता है ना. इफ आई एम स्टिल ruled by my impulses, lower nature, and now I am saying oh no I am not the doer, है ना, तो वहां पे ये नहीं एप्लीकेबल है, मतलब ये एप्लीकेबल लेटर होता है. वहां पे तो Yeah. पहले तो मुझे ओनस लेना है कि नो आई एम द डूअर ना, व्हाट डू आई वांट टू डू विद दिस लाइफ. Yeah. क्योंकि इसको गलत तरीके से ले लिया कि आपने इफ यू डू ऑल काइंड ऑफ क्राइम्स एंड देन यू से आई एम नॉट द डूअर, उसने करवाया, एंड पीपल से, Yeah. है ना, ऐसा Yeah, कहा they जाता है. say. हाँ, Um, कि भाई वही तो है करवाने वाला भैया, मतलब आप भी हो. एक्सक्यूज मी, um, मतलब चाय um, बनाने के लिए कौन उठा, आप ही तो उठे, वो थोड़ी ना आया. तो कैसे हम, है ना, उसको गलत तरीके से हम ट्विस्ट करके कहीं पे भी, और उसमें हमको लगता है कि हम मतलब अपने वो कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग अवर सेल्व्स, वी डोंट नो कि अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं. तो पहले तो ओनस लेना बहुत जरूरी है, अभी तो वो डूअरशिप के तो बाद में आएगा छोड़ना. बट ऑफ yeah. कोर्स मतलब व्हाट यू वर पॉइंटिंग एट, मतलब इफ वन इज इन दैट काइंड ऑफ फेज ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, देन यस, है ना, the liberated man will live in the spirit, stand back from imperfect nature. This, It however, appears that this would be more of a happening, है ना? The doership is a doing again. कि yes, I have to, and then yeah. अब देखो ना इतने टाइम तक इट्स, आई वुड से, मतलब ऑफ कोर्स हैपनिंग्स आर देयर, सो मेनी हैपनिंग्स आर देयर, बट ऑल द टाइम पर्सनल एफर्ट भी तो चल ही रहा है ना हमारा. मतलब श्योर बिंदु जो बुक है छोटी वाली मदर में, उसमें वो बताते हैं ना कि एज लॉन्ग एज फॉर अ लॉन्ग टाइम पर्सनल एफर्ट ऑफ साधक इज रिक्वायर्ड until an irrevocable transformation occurs, कि अब उसको करने की जरूरत नहीं है, अब हो रहा है ना. yeah. अभी तो हमारा जो नेचुरली हो रहा है दैट इज मोर लाइक पैटर्न्स हो रहे हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट अभी एफर्ट करने की हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है. तो एक स्टेज ऐसी भी आती है जब व्हेन इररिवोकेबल यू टर्न हैज बीन टेकन एंड नाउ स्लिपिंग बैक टू पैटर्न्स इज इम्पॉसिबल, है ना, एंड लिविंग बाय द स्पिरिट इज द ओनली चॉइस यू हैव, देयर इज नो अदर चॉइस. बट अभी वो आई कहाँ है हमारे पास, हमारे पास तो हर मोमेंट हमको चॉइस दिखती है, ईगो खड़ी है बुला रही है, आजा आजा, है ना. Yeah. Hmm. So this, however, possible as a stage towards a final cessation of all activity,
is evidently not a counsel of active perfection, but it is meant that the Siddha of the active integral perfection will live dynamically in the working of the transcendent power of the Divine Spirit as a universal will through the supermind individualized in him for action. मतलब active, like there is a dynamism. It's not like a passive हो गया मेरा type. Yeah, so this I think is referring to standing back from imperfect nature, है ना? कि ये जो है standing back from imperfect nature, जैसे जैसे रमन्ना महर्षि का बताते हैं ना, that he stood back in the silent Brahman, but there is also this side of dynamic Brahman. Stand back. This, however, this standing back from imperfect nature, however, is possible a stage towards a final cessation of all activity. कि अब आपने वर्ल्डली चीजों में अफेयर्स में इन्वॉल्व होना ही बंद हो गया आपका, है ना? सेसेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी इज एविडेंटली नॉट अ काउंसिल ऑफ एक्टिव परफेक्शन. तो अब इंटेग्रल योगा तो एक्टिव परफेक्शन की बात कर रहा है ना? बट इट इज मेंट दैट द सिद्धा ऑफ एक्टिव इंटेग्रल परफेक्शन, ये देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Active integral perfection will live dynamically in the working of the transcendent power of the Divine Spirit as a universal will through the supermind individualized in him for action. अब action में, अब this I see very much with, मतलब I don't know, मतलब मुझे दिखता है that at ashram, no, मतलब maybe I think time different kind of personalities पे भी depend करेगा, किसका क्या sphere of action है, किसी का intellectual है, किसी का मोर है ना फिजिकल वर्क ओरिएंटेड हो सकता है. बट आई सी हियर एट आश्रम दैट दिस एक्टिव पार्ट, इन एक्शन मेकिंग दोज टीचिंग्स अलाइव रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट रियली. मतलब तब एक्चुअली में अच्छा वो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स है हमारे लिए कि कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है. So active connection with that transcendental power and putting it into action, individualized in him for action. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जब हमारा कम्युनियन है तब बढ़िया और बाकी टाइम वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन. दैट्स द टास्क. So his works will therefore be the works of an eternal knowledge, an eternal truth, an eternal might, an eternal love, an eternal ananda. But the truth, knowledge, force, love, delight will be the whole essential spirit of whatever work he will do and will not depend on its form. मतलब चाहे झाड़ू लगा रहे हो चाहे कंप्यूटर पे बैठे हो, all of these elements are there: truth, knowledge, force, love, delight. They will determine his action from the spirit within, and the action will not determine the spirit or subject it to a fixed standard or rigid mold of working. That this is my area of expertise and that is what I can do, done. Otherwise, in all the areas, I can't translate that spirit into action. That's they will. So, what is determining the action from spirit? ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, they will determine the connection with eternal might, knowledge, force, love, delight. They will determine his action from the spirit within, and action will not determine the spirit or subject it to fixed standard rigid mode of working. That's so beautiful. ये भी देखो आगे वाला जो है, he will have no dominant mere habit of character, but only a spiritual being and will, with at most a free and flexible temperamental mold for the action. मतलब जिस उचित तरीके से काम का होना जरूरी है उसमें ढल गए. अच्छा अब इसमें ढलना जरूरी है, इसमें ढल गए, इसमें ढलना
है ना, ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है फिर। जो डिवाइन वर्क के लिए, जो राइट वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, उस मोल्ड में आप ढल गए। आई एम रिलेटिंग इट विद जो जीवन मुक्ता के बारे में श्री अरबिंदो बताते हैं ना, इट्स क्वाइट रिलेटेबल हियर ऑल्सो, बिकॉज ही इज नॉट लिविंग फॉर हिज पर्सनल सेल्फ फुलफिलमेंट, है ना, मतलब कुछ। हाँ बोलो, आप म्यूटेड हो। I just wanted to go through this again. What all things have been said: eternal knowledge, eternal truth, eternal might, eternal love, eternal ananda. नॉलेज और ट्रूथ को कैसे डिस्टिंग्विश किया हुआ है? आई थिंक एक तो ये है ना कि जैसे मतलब जहाँ बार बार जो ये एटर्नल यूज कर रहे हैं, आई थिंक हाँ। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी नॉलेज इज नॉट एटर्नल, है ना, इतनी सी आती है फिर भाग जाती है। हम्म, इन द बैकग्राउंड व्हाट डिफॉल्ट वी हैव इज इग्नोरेंस। आई डोंट नो। हम्म, yeah, और नॉलेज आएगी बट वो ग्लिम्सेस में आएगी, है ना, अगर इफ इवन इफ देयर इज ट्रू नॉलेज। yeah. और और ट्रू माइट इज फोर्स। माइट इज स्ट्रेंथ। अब Strength. हमारी स्ट्रेंथ भी देखो कितनी लिमिटेड है, मतलब थोड़ा सा काम करके हमको लगता है यार बस अब ब्रेक चाहिए, है ना, मतलब। Yeah. तो आई वाज एक्चुअली राइटिंग समथिंग टुडे रिगार्डिंग दिस ओनली, जैसे मतलब द थिंग दैट केम टू मी वाज जैसे सॉकेट्स होते हैं हमारे पास, है ना, सो Hmm. इफ आई हैव टू चार्ज माय बैटरी, आई हैव टू पुट द वायर ऑफ द बैटरी इन द सॉकेट, Hmm. है ना। अब वो सॉकेट अगर लूज है, तो पूरी तरह से ढंग से नहीं लगा हुआ, बीच बीच में टाइट हो जाता है, बीच बीच में लूज हो जाता है, तो बैटरी की चार्जिंग भी वैसी ही होगी, है ना, Hmm. अनफुलफिल्ड बैटरी। Hmm. So I was feeling that we keep on doing this. We have the connection, then we make it loose. है ना? Then we have the connection, then we make it loose. तो and then we wonder कि why am I not in full strength and full vigor and you know power कह लो, कुछ भी कह लो। तो जब हम खुद ही by choosing actually, है ना, we continue to untighten that socket, तो कैसे हम चाह सकते हैं कि हमारी बैटरीज रिचार्ज रहें, फुल रहें। Hmm. और कहने को तो आई कैन से कि सॉकेट में लगा ही हुआ है, देखो फिर भी चार्ज नहीं होगा। सॉकेट में लगाना पड़ता है ना, वही तो चक्कर है, क्योंकि जहां यू सॉकेट। सेइंग लगा भी हुआ है फिर भी लूज है तो चार्ज नहीं होता ना, हम्म। पकड़ा अच्छे से नहीं हुआ। या अब देखो ना, लेकिन बैकग्राउंड में देखें तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल इन द हम्म, सॉकेट, है ना, वी आर ऑल इन द सॉकेट, हम्म, अदरवाइज वी विल नॉट बी हियर, मतलब हम्म, एनिमेटेड नहीं होंगे हम। हम्म, बट फॉर व्हाट वी हैव टू डू, है ना, फॉर ग्रोथ टुवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस, दैट कॉन्टिन्यूड कनेक्शन, हम्म, and which we all have glimpses of, that whenever I'm connected I do feel power, strength, energy, love, whatever, है ना, मतलब that हम्म, intuitive touch is there, but then we lose it, फिर ढीला हो हम्म, जाता है, फिर टाइटन करना है, फिर ढीला हो जाता है, फिर टाइटन करना है, फिर ढीला हो जाता है। तो ढीला क्यों होता है, मतलब why do I allow that ढीला, हम्म, है ना। और स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग सकता है कि ओनली व्हेन आई एम सिटिंग साइलेंटली इन मेडिटेशन देन ओनली दैट कनेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, ऐसा लग सकता है स्टार्टिंग में, जो कि इट हम्म, कुड बी द केस, है ना। बट देन द हम्म, थिंग इज दैट हाउ टू मेक द कंटिन्यूड कनेक्शन बाय consecrating the works, जो मदर कहती है ना, हम्म, दैट योर माइंड कैन नॉट बी साइलेंट जस्ट बाय मेडिटेशन, है ना, यू हैव टू consecrate whatever works you are doing, तो माइंड की साइलेंस पॉसिबल है, ट्रू साइलेंस, है ना, कि एक्शन में भी साइलेंस है इनर, and through that consecration actually I'm maintaining that continued connection with the socket, not only हम्म, just in meditation but also in action। तो ये जो एटर्नल माइट, एटर्नल नॉलेज और एटर्नल हम्म, ट्रूथ जो आप कह रहे थे, और देखो नॉलेज इज व्हाट वी नो, हम्म, यूजुअली वी नो थ्रू सेंसेस,
Then there is a knowledge which is not through the senses, which is above the senses. क्योंकि सेंसेस के बस का नहीं है उतना कुछ समझ पाना जितना वो नॉलेज बता रही है ना, जो जैसे वैदिक ऋषिज को जो नॉलेज मिली है ना। और ट्रुथ, मुझे लगता है ट्रुथ मे बी इज द रेफरेंस टू जिसकी हम बात करते हैं ना, ट्रू कॉन्शियसनेस। when I am not in my ego consciousness, then I am in my true consciousness. चाहे वो डेप्थ इन द हार्ट ले लो, मदर्स कॉन्शियसनेस ले लो, है ना, अबव द हेड ले लो, कुछ भी हो सकता है एट वेरियस मोमेंट्स ऑफ टाइम, बट ईगो कॉन्शियसनेस इज नॉट माय ट्रू कॉन्शियसनेस। क्योंकि वो एटर्नल नहीं है उस तरीके से जितना, है ना, मतलब नॉलेज भी दे ट्रूथ ही रही है ना, बट दैट इज द थिंग्स दैट इज ग्रास्पेबल, and yet there is a truth which cannot be, like you said, grasped by the sense, which ग्रास्प, is truth. Yeah. Yeah. मतलब नॉलेज आई है Mm. ना, एज यू सेड ग्रास्पेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, बट इट्स नॉट जस्ट द फंक्शन ऑफ सेंसेस विच इज लीडिंग टू दैट नॉलेज। मतलब वो जो 2+2=4 वाली नॉलेज नहीं है ये, Mm. एटर्नल नॉलेज, Mm. मतलब दैट विच इज टाइमलेस। जैसे वेद की श्रुति को इटर्नल नॉलेज हाँ बोलते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, उपनिषद हाँ हाँ है ना, हाँ। दे आर, दैट टाइम दे वर ट्रू, राइट नाउ दे आर ट्रू, दे विल बी ट्रू हम्म, लेटर ऑन। तो हम्म, हम्म। एटर्नल कार्तिक। माइट, माइट जब हम्म, तक मैं ईगो कॉन्शियसनेस में हूँ, इट कैन नॉट बी एटर्नल माइट। हम्म, सो आई हैव टू transcend the egoistic self so as to be connected with that eternal might। जैसे कुछ लोग होते हैं, है ना, मतलब वीसी की, भाई थकते नहीं हो क्या, है ना, मतलब एंड दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। बॉडी थकेगी क्योंकि बॉडी तो अभी फिजिकल बेस इज इग्नोरेंट, है ना, क्या कर सकते हैं उसका, बट देयर स्पिरिट इज सो एंथुजियास्टिक वट एवर एज दे मे बी। Eternal might, and this is I think, है ना, eternal love and eternal ananda। I think ये जो the ananda that we seek through all little means which comes and goes away, you know, the bap of all that which comes when we are not serving our little individualities, and paradoxically in that our little individualities are also served, जो हम पढ़ रहे थे किसी दूसरे में ना, इसी के दूसरे चैप्टर में, कि fulfillment of ego also lies there। eternal love which is beyond time and space। नहीं तो अभी हमारा वाला तो ऐसा होता है ना कि अभी है कल नहीं है, changed into hate। तो व्हाट इज द स्पिरिट, है ना, ये बहुत सुंदर है एक्चुअली, मतलब दिस इज वेरी हेल्पफुल। ट्रुथ, नॉलेज, फोर्स, लव, डिलाइट विल बी द होल एसेंशियल स्पिरिट ऑफ वॉट एवर वर्क ही विल डू, है ना। अब उससे नहीं फर्क पड़ता कि मैं अब काम कौन सा कर रहा हूँ, क्या मैं मेरी क्वालिफिकेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा मैंने पढ़ाई तो मैंने ये कर ली, और काम मुझे तुम ये वाला दे रहे हो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब वो सब नहीं हो रहा। what is the essential spirit is truth, knowledge, force, love, delight, which can be anywhere, है ना, कोई भी काम तुम कर लो, एक्चुअली वी ऑल नो दैट। अगर ये essential elements are taken care of, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाउ वी लिमिट अवर सेल्फ ना कॉन्टिन्यूसली, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम सीईओ स्टैंडर्ड के हैं, ये नहीं कर सकते, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, हाउ कैन आई डू दिस, है ना, मतलब हाउ वी कीप लिमिटिंग अवर सेल्व्स। भैया टेक्निकल ग्राउंड से पीछे भी तो कोई बैकग्राउंड है ना,
उसको भूल जाते हैं ना, वो सिर्फ 5 साल 6 साल की टेक्निकल पढ़ाई याद रह जाती है। जिस कैनवस पे वो टेक्निकल पढ़ाई हो रही है वो कैनवस भूल जाते हैं। हम्म, हम्म। तो अभी आज इतना ही रखते हैं शायद, है ना, बाद में लेना चाहिए बाकी, इसको वापस ले लेंगे अगर लेना है तो। हम्म। 6:44 एंड। ठीक है।